Hello students, now let us start with the journal. In that yesterday we have seen one illustration. Now today I'll start with the exercise, that is sum number 6, question number 6. Question number 5, that is an easy sum that you can do yourself. So that is in homework. Okay, so let's start with the question number 6, because this is the main. ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ही होंगे और कोई ट्रांजेक्शन परचेज सेल्स के होंगे नहीं. राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम. तो हियर see here I have prepared specimen. I have already solved the journal. Right, for the half of the transaction I have done rough work, right. So do not make habit of making rough work. Rough work आप ज़्यादा नहीं कीजिए. rough work तो that is only for the understanding. Always make habit of solving direct journal. इसलिए मैंने सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन का ही rough work किया है. right. Okay, first one, that is introduced goods of rupees 10,000. Goods that means stock. Cash 15,000, furniture 5,000, debtors of rupees 10,000, and commenced business. Commenced business, who commenced business? Here owner is commenced business, right. Now whenever owner commenced business, owner started business, it is treated as capital account. Now see in the rough work, here stock is there, cash is there, furniture is there, debtors is there, and for whenever owner gives something to the business, it is treated as capital account, right. अभी सारों का हम टाइप ऑफ अकाउंट लिख दे, रियल पर्सनल, एंड कैपिटल इज ऑल्सो पर्सनल. वॉट फॉर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो स्टॉक कम्स इन टू द बिजनेस, सो डेबिट. कैश कम्स इन टू द बिजनेस, सो डेबिट. फर्नीचर कम्स इन टू द बिजनेस, सो डेबिट. Debtors, see here debtors becomes the receiver. Persons, debtors are not only but persons, so they become receiver over here, so debit. Capital account, here owner becomes giver, so credit. So I have written this in a proper format. Stock account debit, cash account debit, सबकी जिसकी जो अमाउंट है वही लिखेंगे. स्टॉक 10,000, कैश 15,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. Here amount of capital is not given, but we make total of this and write down over on credit side, because owner is providing all these things. So capital account 40,000, right. डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट सेम जानी चाहिए, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए. वॉट एवर यू amount you write down on debit side, the same total amount you have to write down on credit side. Otherwise at the end of the journal your total won't be tally, मतलब वो सेम नहीं आएगा. देन आफ्टर राइट डाउन बीइंग में आप पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन ही लिख दीजिए, एंड देन मेक द लाइन इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स ओनली with the pencil only, right. Okay, now second transaction. Now see second transaction. Personal motor car sold for 80,000 and introduced 50,000 in business. Now see here owner is selling his personal motor car. ओनर चाहे कुछ भी बेचे खुद का, बट बिजनेस में वो जितना पैसा लाता है या जो भी एसेट लाएगा हम उसका ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं. नाउ से हियर ओनर सेलिंग हिज मोटर कार ऑफ रुपीज़ 80,000 एंड इंट्रोड्यूस्ड, मतलब बिजनेस में 50,000 ला रहा है, सो वी रिकॉर्ड ओनली 50,000 इनटू द बिजनेस. सो ओनर गिव्स कैश टू द बिजनेस. फॉर द ओनर वी राइट डाउन कैपिटल अकाउंट, कैश दैट इज रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट. कैश कम्स इनटू द बिजनेस, सो डेबिट, एंड कैपिटल में ओनर बिकम्स गिवर, सो क्रेडिट. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000, एंड देन राइट डाउन बीइंग होल ट्रांजेक्शन एंड देन लाइन, राइट. मैंने कल समझाया था कि इसमें किस तरह से लिखते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1,000 withdrawn from bank for personal use. Whenever we withdraw from the bank we always withdraw cash. Now personal use, now हम बिजनेस में से खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए कैश या स्टॉक ले जाएंगे,
so that is treated as drawings, right? So here see, ड्राइंग्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट क्यों? बिकॉज बैंक से विड्रॉ किया इसलिए बैंक. तो ड्राइंग दैट इज ऑल्सो पर्सनल बिकॉज दिस इज ऑल्सो ओनर्स अकाउंट एंड बैंक दैट दिस इज ऑल्सो पर्सनल. दिस इज आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, सो पर्सनल अकाउंट. वी बिकम्स द रिसीवर, हमने बिजनेस में से लिया तो वी बिकम्स रिसीवर, सो डेबिट. बैंक बिकम्स गिवर, सो क्रेडिट. सो सी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. 1000 हमने 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया है. बीइंग में पूरा ट्रांजेक्शन एंड देन लाइन, राइट. ड्राइंग्स में आप डेबिट में किस तरह से लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट, लीव सम स्पेस एंड दिस राइट डाउन डेबिट विद द नियर बाय दिस लाइन, राइट. ये लाइन के नज़दीक में ही आप डेबिट लिखेंगे. Then for the credit effect, leave here some space, then write down to, then space, and then name of the account, right? Amount of debit in debit column, amount of credit in credit column. Then after, next, income tax refund for of 500 of owner of sole proprietor deposited with bank account of business. Income tax refund, वो 500 जो आया वो हमने बैंक में बिजनेस अकाउंट में जमा करवाया ना. मतलब कि इन शॉर्ट दैट ओनर हैज़ गिवन मोर 500 रुपीज़ टू द बिजनेस. नाउ व्हेन ओनर गिव समथिंग टू द बिजनेस, इट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल. कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट. सो सी, एंट्री. Bank becomes here, two accounts are affected, bank account and capital account, right? So here bank account debit क्यों? Because bank becomes the receiver, so bank account debit and owner becomes giver, so to capital account 500 and then being and then line. Next transaction, from business, goods of ₹1000 and cash ₹400 are withdrawn for personal use. पर्सनल यूज़ हो तो ड्राइंग्स आएगा, राइट. तो एक तो ड्राइंग्स अकाउंट हम लिखेंगे, सी ड्राइंग्स अकाउंट. देन वी हैव विड्रॉन गुड्स एंड कैश, राइट. तो यहाँ पे मैंने परचेज क्यों लिखा? नाउ गुड्स गॉन एनी वे फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज परचेज. goods gone by drawing, goods gone by theft, goods gone by rain, right. goods gone by fire. कोई भी मतलब सर्कमस्टेंसेस से अगर बिजनेस में से गुड्स जाएगा, सो दैट वी रिकॉर्ड एज परचेज. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्राइंग्स दैट इज ऑलवेज डेबिट, कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट. ये आप याद रखना. ड्राइंग्स कैन नेवर बी क्रेडिट एंड कैपिटल कैन नेवर बी डेबिट. ड्राइंग्स की ऑलवेज डेबिट इफेक्ट जाएगी, कैपिटल की ऑलवेज क्रेडिट इफेक्ट जाएगी. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टोटल 1400 हाउ? टू कैश टू परचेज, राइट. नाउ टू कैश में हमने क्यों लिखा है? बिकॉज कैश गोज फ्रॉम द बिजनेस, सो वॉट एवर गोज आउट दैट इज टू बी क्रेडिटेड. गुड्स गॉन बाई एनी वे दैट इज ऑल्सो क्रेडिटेड. सो 1000, सो 1400, 400 एंड 1000. अभी आप रफ वर्क का प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, रफ वर्क नहीं कीजिए, बिकॉज नहीं तो आपको रफ वर्क करने की हैबिट हो जाएगी. सीधा आप एंट्री लिखने का ट्राई कीजिए. देन आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर पेड फ्रॉम द बिजनेस. डॉटर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सो दैट इज पर्सनल एक्सपेंस, राइट. सो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ₹1500 पेड फ्रॉम द बिजनेस. पर्सनल एक्सपेंस दैट इज ड्राइंग. तो एक तो ड्राइंग्स अकाउंट आएगा. एक्सपेंसेस पेड किया है, सो सेकंड इफेक्ट दैट इज ऑफ कैश, राइट. ड्राइंग दैट इज ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश पेड फ्रॉम द बिजनेस, सो कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट 1500 एंड देन बेइंग. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस. हाउस के लिए हमने फर्नीचर खरीदा है, दैट मीन्स कि ड्राइंग्स ओनली. वी हैव परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹2000
फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस, मतलब घर के लिए हमने बिजनेस के पैसों से हाउस फर्नीचर खरीदा है. सो दैट इज़ ट्रीटेड एज ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000. Drawings account debit 2000 to Ganga Furniture Mart 2000, right? Drawings is always debit, so 2000 Ganga Furniture Mart becomes giver, so 2000. Now see here, name of the person is affected, so कैश की इफ़ेक्ट नहीं आएगी, नेम ऑफ द पर्सन की आएगी, इसलिए कैश की कोई इफ़ेक्ट है नहीं. सो यू स्टार्ट whenever you solve journal transaction, first of all identify economic, non-economic, then after identify cash or credit transaction, then after apply rules, and then after you pass journal. Now last transaction, life insurance premium of rupees 500 paid by check. LIC, that is also personal expense, that is also paid from the business account, from the business only. तो क्या एंट्री पड़ेगी? पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए अमाउंट कितना है 500. एक मिनट. ड्राइंग, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर राइट डाउन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, राइट. LIC, दो दिस इज कैश ट्रांजेक्शन, वी डू नॉट पास कैश, वी डू नॉट पास इफेक्ट ऑफ कैश. वाई? बिकॉज ये पर्सनल एक तो ट्रांजेक्शन है, उसके लिए हमें कैश की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? एक तो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, एंड हियर बैंक वर्ड इज़ गिवन, सो वी हैव इंस्टेड ऑफ कैश वी हैव रिटर्न बैंक, राइट. तो कैश ट्रांजेक्शन में चेक या बैंक, दोनों में से कोई एक इफेक्ट तो आएगी ही आएगी. तो एक इफेक्ट बैंक की, दूसरी इफेक्ट क्या? ड्राइंग्स, राइट. ड्राइंग्स दैट इज ऑलवेज डेबिट, तो बैंक बिकम्स गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. सो टू बैंक अकाउंट 500, राइट. ओके, सो देन मेक द टोटल. टोटल अब किस तरह से करेंगे? यहाँ पे पर्टिकुलर्स में टोटल लिखेंगे, देन ड्रॉ द लाइन, देन राइट डाउन टोटल, एंड देन ड्रॉ द डबल लाइन. इट इज़ कंपल्सरी टू ड्रॉ डबल लाइन. what is the reason for drawing this double line? Double line specify the equals to sign. The total of debit side and total of credit side is equal. That's why double line is to be drawn at the time of totaling. समझ में आ रहा है, राइट. तो आप ये सम वीडियो पॉज करके लिख लेना, ये या फिर मैं PDF फाइल सेंड कर देती हूँ, राइट. ओके, सो we'll meet tomorrow.